security, and becoming a party that once again stood proudly with, not against, our national flag. The hard work of change was with a singular purpose, not power for power's sake, but to change Britain for the better, to build a fairer country with dignity and respect, where everyone is seen, everyone is valued, wealth and opportunity for all, not just the privileged few. And look at what we've achieved in just 2 years. An economy that is stronger, growing faster than our peers, wages rising faster than inflation in every single month since we came to power, investment secured, infrastructure being built, an end to austerity, with the fastest fall in NHS waiting lists for 17 years, the biggest improvement in rights for workers and renters in a generation, the biggest uplift in defence spending since the Cold War, small boat crossings falling, asylum hotels closing, protecting young people from social media, and 500,000 children being lifted out of poverty because of the choices that I made. Our reputation in the world restored, with Britain once again standing up for decency, respect, and the rule of law, securing trade deals, standing with Ukraine, standing up for our values, and rebuilding our relationship with our allies in Europe. Change promised by a Labour government, change fought for by a Labour government, change delivered by a Labour government. But I know the question being asked now is not who was best placed to change the Labour Party, to take us into power and to begin the vital work of improving lives for millions of people. Those questions have been answered. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office. I want to thank all of those friends and colleagues who have been at my side for these past 6 years or so, for their incredible commitment, service and support. I want to thank the brilliant Number 10 staff and our country's extraordinary civil service who dedicate their lives to public service. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife, Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
I will resign as leader of the Labour Party. The announcement there. बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने बतौर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे दिया है, मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और ये इस्तीफ़ा सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात में ही पैदा होने वाले प्रेशर के बायस दिया गया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। साथ ही साथ वो इस दौरान गुफ्तगू करते हुए इमोशनल भी हो गए और उन्होंने बरतानवी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि मईशत को 2 साल मजबूत करने के लिए बहुत काम किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे सीनियर तज्ज़ीकार एहतिशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहतिशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। हम देख रहे हैं कि बरतानिया में तीसरी मरतबा ये सिचुएशन देखने में आई है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बड़ा शदीद केस स्टारमर पे दबाव था। उसकी बुनियादी वजह है कि इससे पहले भी उनके 2-3 लोगों ने रिज़ाइन किया या उनको मजबूर किया जा रहा था रिज़ाइन करें। जेफरी एप्स्टीन, वो जो लीक्स हैं उनमें उनका नाम आ रहा था और ख़ास तौर पे इनके केस स्टारमर पे जिन्होंने ये वज़ीर दिफ़ा अपना लगाया था, उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा थी कि ये तो नॉमिनी थे केस स्टारमर के, प्राइम मिनिस्टर के। तो अब जाहिर सी बात है, इसके बाद से अपोजिशन उनकी बड़ी तकड़ी हो गई थी और उन्होंने इन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। और वैसे भी आप देख लें, लेबर पार्टी जो है ना, वो कभी भी वहाँ पे उसको इतनी हमायत नहीं मिलती जितनी कंजर्वेटिव पार्टी है। उसके बारे में कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होती है, तो ज़ाहिर है मौके देख के उसको बदल देते हैं जब जिसको मौका मिलता है। तो अब ज़ाहिर है एक सियासी बहरान इनके लिए थोड़ी देर के लिए तो पैदा होगा। क्या करेंगे, बड़े सारे लोग इस पर आएंगे और यह सूरत हाल अब जबकि ईरान अमेरिका का मसला भी बना हुआ है, वो अब पूरी तरह ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ अब ये सूरत हाल बिगड़ गई है अपने बरतानिया में, तो मेरा ख्याल है अब केयर स्टारमर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था। इतना किस्म आ गया था उनके ऊपर, तो नतीजतन उनको ये सब कुछ छोड़ना पड़ा, रिजाइन करने वाली बात सामने आई थी। अच्छा एहतिशाम साहब, हुक्मरान जमात पर इसका क्या असर पड़ेगा और अब इनके इस्तीफे के बाद क्या ऐसा इम्कान नजर आता है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाए? फिर देखिए, वो जो कुछ लोग उनके हैं अपने लेबर पार्टी के, उन्होंने तो बड़ी कोशिश की थी कि ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात ना हो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगली दफ़ा शायद जितना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। अभी भी देख लें, जो लोग हर दफ़ा बात करते हैं, चाहे वो हेल्थ का शोबा है, चाहे एजुकेशन का शोबा है, जो इन्फ्लेशन बढ़ाने की बात हुई है वहाँ पे बहुत बड़ी है कि स्टारमर कुछ नहीं कर सके। तो अब यह है कि एक तरफ दबाव था इनके ऊपर अपना बड़ा सीरियस किस्म का, ये जो लेबर पार्टी है कि जी आप ये काम करें, जो नहीं किया। अब इसके बाद ये है कि अब रिजाइन करने के बाद अब दूसरी तरफ देखते हैं कि उनका रवैया कंजर्वेटिव सब क्या होगा। वो तो चाहेंगे नए सिरे से इलेक्शन हो या इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर है इन हाउस तब्दीली ज़रा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर उसमें फिर दोनों पार्टियों को बीच में लाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये एक क्राइसिस तो बना है, ये सियासी क्राइसिस तो बना है। अब देखना यही है कि बरतानिया की पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों पार्टियों की इसको कैसे कवर करती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट जो बरतानिया की है, उन्होंने बिल्कुल इनको ओके नहीं किया था अपना लेबर पार्टी, क्योंकि वो इक़्तिदार में आए। जैसे अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को आने से रोका था, लेकिन वो फिर भी आ गए थे। तो ये सूरत हाल है, तो अब देखते हैं कि आगे चल के क्या मामला होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतिशामुल हक साहब। ये आपको अहम खबर दे रहे हैं, इक़्तिदार की मुंतकली तक वज़ीर आज़म रहूँगा। सर केयर स्टारमर बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया है। बोल न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। डेटॉल की यकीनी हिफाजत के साथ अब 10 ग्राम बिल्कुल फ्री। अब आया न्यू अनार, It's delicious as Fanta. So crunchy, fully infused with flavor for the first time in Pakistan. Sobroso's all new Arabian filet nuggets. Definitely Arabian. हेलो, कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊँ यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं। नए मुल्क जाने की परेशानी है या किसी से दूर होने की? उसने कहा है तुम्हारा इंतजार करेगी।
वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तुम्हारे दादा की तरह। हर उम्र में चलने वाली दोस्ती, लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग। एक्स्ट्रा चीज? सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिज डल है तो तू भी ना यार। 7 Up, now with extra fizz. वेलकम बैक। और बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की मुंतकली तक बतौर वज़ीर आज़म खिदमात सर अंजाम देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को बेहतर करने के लिए बहुत इक़दाम किए, बरतानवी आवाम की खिदमत करने का एजाज़ हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म के अहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उन्हें अपनी ही जमात में दबाव का सामना था। उनके वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी उन्हें ये कहा गया था कि वो अपने रेजिग्नेशन का टाइम डिसाइड कर लें, जिसके बाद ये इतलात आ रही थी कि आज मुमकिन तौर पर वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिसके बाद अब से कुछ देर पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ बताते चले कि मैकरफील्ड में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो नए उम्मीदवार हैं वो मुमकिन तौर पर इस अहदे पे जो वाज़ेह तौर पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपनी ही जमात की जानिब से जब उन्हें प्रेशर का सामना करना पड़ा तो उनको वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो रेजिग्नेशन की तरफ जाएं। उनकी जमात पर दबाव है जिसके बायस कारकर्दगी की वजह उन्हें करार दिया गया। और साथ ही साथ केयर स्टारमर की जानिब से कहा गया कि बरतानवी बादशाह को इस्तीफ़े से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया है। बिल्कुल। और इसके